And if you see it, the residual volume is 1.2 in healthy individual, respiratory flow. So this you should know all the terminology. So I'll show it later on after the lung volumes and capacity, so that you can better understand it, right? So this, the flow volume loop, again it will come in the same class, right? So the last which was remained is work of breathing. There are the three types of works that muscle has to perform. Work कौन करता है? Muscle. ठीक है? As the inspiration is active process. So the work is done by the muscles, and this works are divided into three types: compliance work, airway resistance work, and tissue resistance work. Now what is compliance work? The work performed by the muscles to overcome the elastic resistance. Elastic resistance, 2/3 is contributed by surface tension, 1/3 is contributed by the elastic fibers. तो उसको elasticity क्या क्या होता है? It is due to surface tension and elastic, it has a recoil pressure. ठीक है ना? वो रिकॉइल होने का उसकी टेंडेंसी होती है, मींस द लंग्स ट्राई टू कोलैप्स, एंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन उसको ओवरकम करना है हमको, यानी उसको स्ट्रेच करना है, और स्ट्रेच करना है यानी ज्यादा काम करना पड़ेगा, राइट? स्ट्रेच करना है यानी वो रेजिस्टेंस होगा. So the work done by the muscles to overcome the elastic resistance, it is a compliance work. Same way, the work done by the muscles to overcome the airway resistance is known as a airway resistance work. The bronchial tube and expiratory position में उसके diameter कम होता है, there is a constriction, right? During inspiration उसको elastic fiber को उसको खींचना है, so that there is a bronchodilation. So the work done by the muscles to overcome that resistance is airway resistance. And beside that, there is a also the muscle has to work to overcome the non-elastic viscous resistance, right? And that work is known as a tissue resistance work. So there are the three types of work done by the muscles. At rest, only the 5% of the total oxygen consumption by person is accommodated by the work done due to respiration. And of the work done, normally about 60% of the work done is to overcome the elastic resistance. यानी जितना ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है उसमें 5% ऑक्सीजन कंजम्पशन इज ड्यू फॉर द वर्क डन ड्यू टू रेस्पिरेशन, और उसमें भी जितना रेस्पिरेशन है उसमें 60% काम इलास्टिक रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए किया जाता है. ठीक है? So this is about the work of breathing. So here we completed the factors affecting pulmonary ventilation जो last time हमने किया था. Now coming to lung volumes and capacity. Now the lung volumes and capacity के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है? तो लंग वॉल्यूम कैपेसिटीज, वेंटिलेशन रेट, FEV1 क्या है, डेड स्पेस क्या है, एंड मिनट वेंटिलेशन फ्रॉम एल्वेलर वेंटिलेशन क्या है, दैट वी विल लर्न, राइट? So first, the lung volumes and capacity are measured with the help of spirometer. तो फिगर में तुम देखो जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, that is a spirometer. The spirometer, it consists of a drum, recording drum, right? Not only the drum, but there is a floating drum also. So फिगर में अगर तुम ध्यान से देखो तो राइट हैंड साइड पर जो एरो करके जो ड्रम दिखाया है, रिकॉर्डिंग ड्रम है, and on left hand side पर there is a floating drum. ठीक है? Why it is floating drum? Because it is inverted in a chamber which contain water. ठीक है? So ब्लू कलर का ऑक्सीजन चैम्बर दिखाया गया है जिसको वाटर से फिल किया जाता है, right? And the weight of that drum is counterbalanced by the weight. So in this drum, it is inverted in position. So in the drum, there is a breathing gas is present, and that breathing gas is usually air. Air होती है और कुछ नहीं, right? Or that tube, that floating drum is connected with a tube, rubber tube के through it is connected with a mouthpiece, right? So mouthpiece में we have to keep it in a mouth, and the subject or a patient has to breathe in, into or out of the chamber.
So when the person breathe out through the mouthpiece, वो जो floating drum है वो ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ड्रम के अंदर पानी एयर भर रही है, ठीक है, तो वो ऊपर की ओर जाएगा। एंड जब पर्सन उसमें से अगर इंस्पायर करेगा तो फ्लोटिंग ड्रम नीचे की ओर आएगा। समझ में आया? ठीक है, दिस इज हाउ द स्पायरोमीटर वर्क्स। नाउ वो जो काउंटर बैलेंस करते हैं विद द वेट, सो दैट थ्रेड इज अटैच विथ अ राइटिंग पॉइंट, और वो राइटिंग पॉइंट वेव बनाता है, ठीक है, वो राइटिंग पॉइंट जो है वो रिकॉर्डिंग देता है, वेव दिख रहा है, ठीक है। सो दिस आर द recording of the this thing, recording of the respiration. So this is the instrument with which we are measuring the lung volumes and the capacities. सबको ये समझ में आया? ठीक है, ये अभी विद इन शॉर्ट टाइम तुम लोग आ ही जाओगे तो प्रैक्टिकल होगा। तो वी आर यूजिंग द स्पायरोमीटर। हाँ, सिर्फ रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं, लेकिन वो जो ड्रम ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो वहां पर स्केल होता है, तो स्केल के थ्रू तुमको लंग वॉल्यूम कैपेसिटी समझ में आ जाए। दिस इज अबाउट द स्पायरोमीटर विथ व्हिच वी आर रिकॉर्डिंग द लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। नाउ जो हमको रिकॉर्ड मिल रहा है इसमें ड्रम के ऊपर, रिकॉर्डिंग ड्रम के ऊपर वी गेट अ रिकॉर्ड, तो उस रिकॉर्ड को बोला जाता है स्पायरोग्राम, राइट? सो रिकॉर्ड इज नोन एज अ स्पायरोग्राम, एंड दिस इज व्हाट वी विल गेट ऑन अ रिकॉर्डिंग ड्रम, राइट? एंड दिस वेव्स आर डिवाइडेड लाइक दिस, ठीक है। तो कैसा है? तो जो अप स्ट्रोक है, जो ऊपर की है और वेव जा रहा है, दैट इंडिकेट्स इंस्पिरेशन। एक स्मॉल वेव की बात करें, स्मॉल वेव यानी 2000 से 3000 के अंदर पिंक में जो ब्लैक कलर के वेव दिखाए गए हैं उसकी बात कर रही हूँ। उस वेव में जो ऊपर की ओर जाती है लाइन, राइट, अप स्ट्रोक, इट इंडिकेट्स इंस्पिरेशन, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो है दैट इंडिकेट्स एक्सपिरेशन, ठीक है। So this is what the spirogram means. तो अभी इसमें डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी दिखाई गई है, राइट? तो वन बाय वन हम उसको देखेंगे। The other one is the peak expiratory flow meter और the pulmonary function test इंस्ट्रूमेंट में। अगर दिस इज जो अर्लियर हमने देखा स्पायरोमीटर से, वो सिर्फ लंग वॉल्यूम्स, थोड़े ही लंग वॉल्यूम्स मेजर करता है, लेकिन जो डिजिटल है या पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग है विच इज अवेलेबल इन द क्लिनिक्स, राइट, that is computerized spirometry, and that will not only records the static lung volumes. Lung volumes are static measure of the lung performance, and the dynamic वाला हम spirometer से नहीं measure कर सकते। So dynamic के लिए जो pulmonary function testing है which is available in the clinics, right, जो computerized spirometry है, that will not only record the static one but it will also record the dynamic lung volumes and capacity, right? So this is how it is measured. Pulmonary function testing has to be done. At every time the nose has to be closed and a person has to expire or be inspired from the mouthpiece, right? जैसे यहाँ दिख रहा है। So now coming to कौन-कौन से volumes and capacity है जो important है, right? So lung volumes and the capacity which are used by, measured with the help of spirometer, they are the 4 lung volumes, right? The first one is a tidal volume. Tidal volume is a normal breathing. It is a normal tidal volume is at the normal breathing at rest, जो already मैंने तुमको बताया है, ठीक है। इंट्राप्लूरल प्रेशर एट रेस्ट -2.5 मिलीमीटर होता है। when you are inspired out, when the diaphragm and the external intercostal muscle contracts, the size of thoracic cavity increases, intrapleural pressure decreases from -2.5 to -6, right? So there is a stretching of the lung. As there is a stretching of a lung, the intraalveolar pressure decreases by 1
millimeter of mercury. So the air moves from atmosphere into the alveoli. So how much air moves in? It is the 500 ml, and the amount of air which enter in the lung at that time, ठीक है, at the time of inspiration, during quiet condition or during resting condition, that is a tidal volume. ठीक है, so tidal volume क्या है? It is a volume of air inspired or expired with each normal breath, right? And it is 500 ml. Tidal volume is the anatomical dead space plus the alveolar ventilation, the alveoli which participate in the ventilation in the gas exchange. VD का मतलब है कि ventilation in the dead space, and the ventilation in VA का मतलब है ventilation in of the alveoli. ठीक है, so बाद में तुमको समझ में आ जाएगा. So this is what the tidal volume. अगर फिगर में तुम देखो तो tidal volume रेड कलर का बॉक्स बना के फिगर में दिया है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, और वो कौन सा है? छोटे वेव्स. ठीक है, ठीक है. सो नीचे की और की लाइन जो है वो एंड इंस्पिरेशन बताता है, वो ही टाइडल वॉल्यूम का जो वेव छोटे है, तो उसमें जो नीचे की लाइन है दैट इंडिकेट्स द एंड एक्सपिरेटरी पोजीशन, एंड ऊपर की जो लाइन है इंस्पिरेशन होने के बाद जो पीक इंस्पिरेशन दिखाता है दैट इज एंड इंस्पिरेटरी पोजीशन, but under resting condition. That is what the tidal volume. ठीक है. Now the second one is the inspiratory reserve volume. Now what is the inspiratory reserve volume? कि तुम इंस्पायर अंडर रेस्टिंग कंडीशन, अभी बैठे हो तो तुम नॉर्मल कर रहे हो, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा, यानी अभी मैं तुमको बता रही हूँ कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद यू इंस्पायर्ड मैक्सिमली, कर सकते हो, डू इट आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन. तुम नॉर्मली जो सांस बैठ के ले रहे हो वो नॉर्मल सांस लेते रहो, नॉर्मल इंस्पायर किया, उसके बाद मैक्सिमम जितना हो सके उतना इंस्पायर करो. ठीक है, किया. सो दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्या है अभी सुनो, is the extra volume or a maximum of air that can be inspired over and above the tidal volume. समझ में आ गया? ठीक है. It is a deep inspiration. It is a deep inspiration. Clear? नॉर्मल वैल्यू होती है 3000 ml. सो यहाँ पर फिगर में अगर तुम देखो तो छोटे वेवी टाइडल वॉल्यूम के ऊपर यानी एंड इंस्पिरेटरी पोजीशन के बाद, राइट, जो तुमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर अंदर ली है वो पूरा ऊपर की ओर तक दिखाया गया है, एंड इट इज अबाउट 3000 ml. सबको समझ में आ रहा है? समझ में आया ये? ओके. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो आगे सेम है, एक्सपिरेशन है. ठीक है, दिस इज इंस्पिरेशन. नाउ कमिंग टू एक्सपिरेशन. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? जैसे तुमने इंस्पायर किया था वैसे आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी नॉर्मली अभी तुम बैठे हो, नॉर्मल ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो. अभी नॉर्मल जो ब्रीद आउट किया उसके बाद मैक्सिमम जितना तुम ब्रीद आउट कर सकते हो उतना करो. ठीक है, यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज मैक्सिमम ऑफ एयर that can be expired by forceful expiration after the end of normal tidal expiration. Is it clear? ठीक है. This is 1100 ml. 1100 to 1200 ml जितना होता है, which is also deep expiration. So expiratory reserve volume क्या है? Deep expiration, right? समझ में आ गया? ठीक है. तो अगर फिगर में तुम देखो येलो वन बॉक्स दिखाया है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट. सो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी पोजीशन के बाद, एंड एक्सपिरेटरी पोजीशन के बाद तुम्हारा जो
नीचे वाला जो वेव है ना, टाइडल वॉल्यूम के नीचे वाला जो है, दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आ गया? ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। Now residual volume, remember it, you cannot measure it with the help of spirometer. यानी स्पायरोमीटर की हेल्प से ऊपर के तीन ही तुम मेजर कर सकते हो। वन इज टाइडल वॉल्यूम, सेकेंड वन इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द थर्ड वन इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। You cannot measure residual volume with the help of spirometer, right? Now what is residual volume? की फिगर में तुम देखो, फिगर में अगर तुम देखो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो ग्राफ है, जो वेव बना है, वो अटक गया एक लाइन के ऊपर, ठीक है। उस लाइन के नीचे का जो भी पार्ट है दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट स्टिल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है। तुमने मैक्सिमम जितनी एयर बाहर निकालनी थी तुमने निकाल दी, राइट? लेकिन उसके बाद भी certain amount of air remain inside your alveoli due to the closure of the bronchioles, ठीक है। वो जो छोटे छोटे ब्रोंक्योल्स और ये सब होते हैं ना, वो जल्दी बंद हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन के टाइम पर क्या होता है, सब अपनी पोजीशन जो इलास्टिसिटी की वजह से स्ट्रेच हुआ था, तो वो वापस रिकॉइल होगा ना, राइट? तो जब रिकॉइल हो रहा है तो जो छोटे छोटे एयरवेज है ना, वो जल्दी बंद हो जाएंगे। जल्दी बंद हो जाएंगे तो एल्वियोलाई के अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग इवन आफ्टर द मैक्सिमम एक्सपिरेशन। तुम कितना भी मैक्सिमम एक्सपायर करो, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर रह जाती है। तो जो एयर रह जाती है आफ्टर, इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन, दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। So after forced expiration, some of air will stay to prevent the lung collapsing. And what is the importance of it? It maintaining the gas exchange in between breathing and preventing marked changes in the PCO2 and O2 in the blood in between the breaths. So इसका जो मेन एम है, जो रेसिडुअल वॉल्यूम का फायदा क्या है कि एक तो गैस एक्सचेंज होने देता है बिटवीन द एल्वेलाई ऑफ एयर एंड पल्मोनरी कैपिलरी, एंड सेकेंड जो एल्वेलाई के अंदर जो एयर है उसमें जो CO2 और O2 के जो पार्शियल प्रेशर है उसको बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं करने देता है, ठीक है। तो उसकी वजह से तुम्हारा जो एक्सचेंज ऑफ एयर है वो नॉर्मल रहता है, राइट? सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेसिडुअल वॉल्यूम। सबको ये समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सबको समझ में आ गया? ओके। नाउ पल्मोनरी कैपेसिटीज। सो लंग वॉल्यूम्स हो गए, अभी लंग कैपेसिटीज। अभी कैपेसिटीज क्या है? इट इज अ समेशन ऑफ वॉल्यूम्स। हमने जो 4 वॉल्यूम सीखे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका समेशन आइदर 2 वॉल्यूम या 2 से ज्यादा वॉल्यूम का जो भी एडिशन है उससे हमको कैपेसिटीज मिलती, ठीक है। 2 or more lung volumes are described as a pulmonary capacity. The first one is the inspiratory capacity. अभी inspiratory capacity क्या है? Is the amount of air a person can breathe in beginning at the normal expiratory level and distending the lungs to the maximum amount. So inspiratory capacity क्या है? 2 वॉल्यूम का एडिशन है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज अ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फिगर में दिख रही है, रेड कलर का बॉक्स बनाया है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। सो ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देखो क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। यानी अगर इसको डिफाइन करना है तो जो लिखा हुआ है वो उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। Now the second one is a functional residual capacity.
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी फिगर में देखो, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज एडिशन ऑफ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को अगर डिफाइन करना है तो अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। समझ में आया? ठीक है। So functional residual capacity is the amount of air that remain in the lungs after normal tidal expiration. It acts as a buffer against extreme changes in the alveolar gas level with each breath. So functional residual capacity is expiratory reserve volume plus residual volume. Again, this you cannot measure with the help of normal spirometer. Inspiratory capacity तो मेजर हो जाएगी, समझ में आया? क्योंकि स्पाइरोमीटर से तुम दो वैल्यू तो मेजर कर सकते हो, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी तुम कैलकुलेट कर पाओगे, लेकिन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी यू कैन नॉट कैलकुलेट इट। क्यों? क्योंकि रेसिडुअल फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज expiratory reserve volume plus residual volume, and residual volume you cannot measure with the spirometer. So FRC you cannot calculate with by measuring the volume only with the spirometer. ठीक है? And what it indicates? The functioning of all the time in between the breaths when there is no air enters the lung. So there is a constant exchange occur because of FRC. ठीक है? And in normal expiration the FRC stay in the body. Functional residual capacity यानी तुम quiet breathing में जो important one है that is a functional residual capacity, और उसका फायदा क्या है कि गैस एक्सचेंज नॉर्मली होने देता है और वो कांस्टेंट रहने देता है। बहुत ज्यादा PO2 एंड PCO2 की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने देता है। ठीक है। द नेक्स्ट pulmonary capacity is a vital capacity. Vital capacity. So what is vital capacity? It is the maximum amount of air a person can expel from a lung after first filling the lungs to a maximum extent and then recording expiring to the maximum extent. So vital capacity is expiratory reserve volume. ठीक है। एंड अगर इसको प्लस प्लस नहीं करना है, यू कैन डायरेक्टली मेजर इट विथ अ स्पाइरोमीटर। एंड फिगर में अगर तुम देखो तो वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों का जो भी मिला है दैट इज फिगर के हिसाब से देखो तो वाइटल कैपेसिटी क्या है उसको डिफाइन कैसे करोगे। ठीक है, तो डेफिनेशन सुनो ध्यान से। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर which you expired out after maximum inspiration। ठीक है, तो तुमने मैक्सिमम इंस्पिरेशन किया यानी एंड एक्सपिरेटरी पोजीशन से यू आर मैक्सिमली, जो बड़ा वाला फ्लो नॉट फ्लो बड़ा वेव है वो उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, यू स्टार्ट इनहेलिंग फ्रॉम एंड एक्सपिरेटरी पोजीशन, टाइडल वॉल्यूम का जो नीचे की लाइन है, ठीक है, वहां से यू स्टार्ट इंस्पायरिंग मैक्सिमली, जितना इंस्पायर हो सके उतना इंस्पायर करो, कर दिया। उसके बाद अभी जितना तुम एक्सपायर कर सकते हो बाहर, ठीक है, जितना कर सकते हो, यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसकी रेसिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो लाइन टच होती है, दोनों के बीच में जो लाइन है वहां तक का, ठीक है, दैट इज अ वाइटल कैपेसिटी। सो अगेन आई रिपीट, maximum amount of air which you expired out after maximum inspiration is a vital capacity, and normal value उसकी होती है 3200 ml to 4800 ml, right? Vital capacity is very important because on the basis of the vital capacity you can identify whether the person has a restrictive type of lung disease or a obstructive type of lung disease। जो lung disease है या respiratory diseases है वो दो में divide होती है, restrictive diseases and the obstructive lung diseases। So on the basis of value of vital capacity you can identify whether the person has a restrictive lung disease or a obstructive lung disease। ठीक है, so vital capacity की जो normal range है 3200 ml to 4800 ml, and there are the certain factors on which the vital capacity depends। वो factors तुम्हारा जब practical होगा उस टाइम पर बता देंगे। ठीक है, इसी का सेम practical भी होने वाला है। So at that time we will
टेल यू द फैक्टर्स, लेकिन अगर फैक्टर्स सुनने हैं तो एज के ऊपर डिपेंड करता है। मेल में वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि मेल में मसल पावर ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन एज कम्पेयर टू फीमेल। सेकेंड, द मेल में बॉडी सरफेस एरिया इज मोर एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट वाइटल कैपेसिटी इज मोर। जो एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं उसमें वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दोज हु आर नॉट डूइंग, बिकॉज फाइनली द इट डिपेंड्स, वाइटल कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मसल। जितनी स्ट्रेंथ मसल की ज्यादा होगी उतना वो एक्सपांड ज्यादा करेगा एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, और जितना एक्सपांड ज्यादा होगा उतने ही एक्सपिरेशन वो ज्यादा कर पाएगा। समझ में आया? सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ मसल, राइट। वैसे ही ओल्ड एज में वाइटल कैपेसिटी कम होती है। क्यों? बिकॉज ओल्ड एज में इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। सेकेंड, द मसल बिकम वीक इफ द पर्सन इज नॉट डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, तो एज के साथ साथ मसल का वीकनेस होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइटल कैपेसिटी डिक्रीजेस। एंड द प्रेगनेंसी में वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, अभी तुम बताओ, ज्यादा होगी या कम होगी? वाइटल कैपेसिटी कैसे ज्यादा होगी, कैसे? यस, रुतम इज राइट, इट इज लेस, बिकॉज प्रेगनेंसी में द वूम इज देयर इज अ बिग वूम ना, द चाइल्ड इज इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। सो एब्डोमिनल कैविटी में चाइल्ड है तो वो डायाफ्राम को एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आने देगा, और बहुत ज्यादा डायाफ्राम को नीचे नहीं आने देगा तो साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी कम एक्सपांड होगी। समझ में आया? तो इंस्पिरेशन उतना कम होगा, और इतना इंस्पिरेशन जितना कम होगा उतना एक्सपिरेशन भी तो कम होगा ना। समझ में आया? सो वाइटल कैपेसिटी डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जितने भी फैक्टर्स बताए वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स में मसल की कोई वीकनेस है, जैसे मायस्थेनिया ग्रेविस है, मसल वीकनेस हो गई तो रेस्पिरेटरी मसल एक्सपांड, उतना उसकी वीकनेस होगी तो वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी तो एक्सपांड नहीं कर पाएगा, उतना एक्सपांड नहीं कर पाएगा तो उतना इंस्पिरेशन नहीं होगा, अगर उतना इंस्पिरेशन नहीं होगा तो एक्सपिरेशन कैसे होगा? समझ में आया? So capacity decreases in restrictive type of lung diseases. Vital capacity decreases in restrictive type of lung disease. Restriction मतलब there is a restriction in expansion of the chest wall. Restriction का मतलब कि expansion of the chest wall में कहीं expansion of chest wall या expansion of the alveoli या फिर expansion of the lung में there is a some issue, right? तो वो restrictive category में जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव कैटेगरी क्या है कि जो तुम्हारा एयर अंदर और बाहर किसके थ्रू आता है, ब्रोंकियल ट्री, एयरवे ट्री के थ्रू आता है। तो अगर उसमें कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो दैट गोज टू द इन द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीजेस कैटेगरी। समझ में आया? सो इन रिस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ लंग डिसीजेस में वाइटल कैपेसिटी कम होती है। क्लियर? ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज द टोटल लंग कैपेसिटी। Total lung capacity is a summation of all the volumes. All the volumes. Total lung capacity देख लो फिगर में, ठीक है। पर्पल कलर का बॉक्स बनाया है, यानी मैक्सिमम से लेके रेसिडुअल वॉल्यूम की एंड तक का जो भी है दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। सो it is a maximum volume to which lung can be expanded with greatest possible effort. और जितनी एयर मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर तुम्हारे लंग में है टोटल, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। इट इज अबाउट 5800 ml टू 6000 ml, ठीक है। सो ऑल द लंग वॉल्यूम्स एंड द कैपेसिटी आर 20 to 25% लेस इन वुमन देन मेन, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। Greater in large athletic people than in small asthenic people. Asthenia means abnormal physical weakness or a lack of energy. जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, समझ में आ गया? ठीक है। It depends on the size of a person and other factors also. Is it clear? ठीक है। So हम आगे बढ़ते हैं।
So this is the all the lung volumes and capacity. जब ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगी उस टाइम पर ये फिगर तुम देख लेना, मैं अभी इसको रिपीट नहीं करती. नाउ कमिंग टू जो बाकी रह गया, वो बाकी कौन रह गया, तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं होता है. अगर रेसिडुअल वॉल्यूम यू कैन नॉट मेजर द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी अगर नहीं मेजर होगा तो टोटल लंग कैपेसिटी भी तुम मेजर नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम तुम कैसे मेजर कर पाओगे, विद द हेल्प ऑफ क्लोज सर्किट हीलियम डाइल्यूशन मेथड. ठीक है, सो दिस इज अ मेथड बाय विच यू कैन मेजर द रेसिडुअल वॉल्यूम. अभी फिगर को देखो, उसमें जो C1 है, ठीक है, C1 इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डॉट डॉट जो दिखाया है वो तुम्हारा हीलियम है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीलियम इन स्पाइरोमीटर है C1, एंड V1 क्या है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर इन द स्पाइरोमीटर. तो मुंह में जाने से पहले वो नोजल से उसको बंद किया है, यानी स्पाइरोमीटर के अंदर पूरा कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है वो V1 है, और उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है हीलियम का वो है. सेकेंड फिगर में पर्सन को बोला जाता है नाउ यू इंस्पायर फ्रॉम द स्पाइरोमीटर, नोजल खोल दिया जाता है एंड यू आस्क द सब्जेक्ट टू इंस्पायर. जब पर्सन इंस्पायर करेगा तो एक तो कॉन्सेंट्रेशन तुमको पता था हीलियम का पहले, ठीक है. अभी C2 क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तुमने इंस्पायर कर दिया, ठीक है, फिर नोजल बंद कर दिया, राइट. तो अभी वॉल्यूम ऑफ एयर कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा इसके अंदर, स्पाइरोमीटर के अंदर हीलियम का, वो तुमको मेजर करना है. ठीक है, एंड V2 क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पाइरोमीटर प्लस, एक तो स्पाइरोमीटर का वॉल्यूम यानी ड्रम के अंदर की हवा विथ पाइप के अंदर की हवा अप टू माउथ पीस, एंड तुमने जो इंस्पायर किया है ना वो हीलियम वाली एयर, यानी तुम्हारा जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होगी, वो है तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम V2. समझ में आ गया. सो इक्वेशन के हिसाब से C1 मल्टीप्लाइड बाई V1 इज इक्वल टू C2 मल्टीप्लाइड बाई V2. So C1 is concentration of helium in spirometry, V1 is volume of air in the spirometry, final concentration of helium and volume of spirometry plus FRC is V2, and this is the equation by which you can measure the FRC. यानी concentration of helium तुमको पता है, volume of air तुमको पता है, final concentration of helium after person inspire वो भी तुम measure कर पाओगे. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पाइरोमीटर भी मेट्री भी, यानी तुम टोटल लंग कैपेसिटी तुम मेजर, वाइटल कैपेसिटी तुम मेजर कर दोगे, और वो पता चल गया तो तुमको FRC ढूंढना है. ठीक है, तो इक्वेशन बिठा दो, तो जो भी मिलेगा वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी तुम्हारी मिल जाएगी, रेसिडुअल वॉल्यूम मिल जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है. So this method is used to measure the functional residual capacity, total lung capacity and residual volume, and the helium analyzer will helps to measure them. Why the spirometer can't measure them? Because spirometer can only feel the air that have been inspired or expired, and as we mentioned before, the residual volume stay in the lung, right? वो अंदर नहीं जाता, अंदर ही है लेकिन वो ट्रैक में नहीं होता है. So the spirometer can't feel it, and the FRC and TLC depend on it. So how you use the result? Residual volume is equal to functional residual capacity minus ERV, and total lung capacity को अगर measure करना है तो FRC plus inspiratory capacity. So with this total lung capacity. Okay. Now coming to force vital capacity. Force vital capacity जो मैंने बताया vital capacity, we learn the vital capacity. तो force vital capacity कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ forceful तुमको ऐड करना है. forceful ऐड करना है यानी maximum amount of air which you expired out maximally and forcefully after maximum inspiration. That is the force vital capacity.
तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ वाइटल कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव का डिफरेंस देखने के लिए वी आर यूजिंग फोर्स वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। एंड force vital capacity and FE1, these two are very important parameter by which you can differentiate whether restrictive or obstructive type of lung disease. So time vital capacity, force vital capacity में time FEV1 क्या है? So in this force or a time vital capacity में person asked to inspire as deeply as possible first, second then asked to breathe out as hard and as fast he can, as hard and as fast, जितना forceful, जितना forcefully and maximally, जितना निकाल सके उतना. Third, the expiration is continued till he expires. Fourth, thus the force vital capacity is obtained. Clear? This is what the force vital capacity. Now during this process the volume, यानी तुम जब forcefully expire कर रहे हो, ठीक है, उसको टाइम क्यों बोलते हैं, उसको फोर्स वाइटल कैपेसिटी को टाइम वाइटल कैपेसिटी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज मेजर्ड एज पर द टाइम, ठीक है. सो नॉट ओनली द मैक्सिमली एंड फोर्सफुली इन अ पर्टिकुलर टाइम. सो अमाउंट ऑफ एयर expired out maximally, forcefully and within a particular time after maximum inspiration is the time vital capacity. It is recorded, ठीक है. So क्यों recording जरूरी है? नीचे लिखा है, right, arrow के नीचे. During this process the volume of air expired, इसमें तुम क्या कर रहे हो? maximally forcefully तुम expire कर रहे हो, ठीक है. So expiration के time पर the volume of air which is expired in the first second, पहली सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकलता है, that is your FEV1. समझ में आ गई ये? This is very important. समझ में आ गया? Yes or no? For FEV1, amount of air which you expired out maximally and forcefully in 1 second, that is a force expiratory volume, FEV1. Got it or not? Okay. So force expiratory volumes, तो जो हम टाइम वाइटल कैपेसिटी करके जो फोर्सफुली जो वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकालते हैं उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है. तो FEV1, FEV2, FEV3 ऐसा मेजर करते हैं. सो FEV1 इज वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली expired in first second. FEV2 is a cumulative volume expired in 2 seconds. FEV3 is a cumulative volume expired in first 3 seconds, right? Normally the entire vital capacity can be forcibly expired in 3 seconds. So there is no need of FEV कि तुम जितना भी मैक्सिमली जितना भी एक्सपायर करते हो ना, राइट, तो फर्स्ट 3 सेकेंड में तुम्हारा 99% ऑफ एयर बाहर निकल जाती है. इसीलिए FEV4 की जरूरत ही नहीं है. समझ में आया? ठीक है. फर्स्ट 3 सेकेंड में ही इतनी एयर बाहर निकल जाती है, राइट. FVC and FEV1 are useful indices of a lung volume, right? And okay, जो ऊपर लिखा है उसका इंपॉर्टेंस, उसका बेनिफिट क्या है? नॉर्मली जो स्टेटमेंट, नॉर्मली द एंटायर वाइटल कैपेसिटी कैन बी फोर्सिबली एक्सपायर्ड इन 3 seconds. So what is the benefit of using FEV1 by FVC? That specifically the fraction of a second used to differentiate among the two disease, restrict or obstructive lung disease. ठीक है. And FVC, FEV1 by FVC ratio in normal person is about 0.8. What does it mean? 0.8 का मतलब क्या है कि 80% of vital capacity can be expired in first second of forceful expiration. समझ में आया? ठीक है.
तो 80% तुम जब एक्सपायर करते हो तो 80% ऑफ एयर तुम्हारी फर्स्ट सेकेंड में ही बाहर निकल जाती है. सो दिस इज FeV1 by FVC रेशियो. ठीक है, नॉर्मली. सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है to differentiate between the FeV1 by FVC ratio is important to differentiate whether the person has an obstructive or a restrictive lung disease. And normally it is about 80%. 80% means 0.8. रेशियो कितना होता है? 0.8. यहाँ 80% यानी ये 80% ऑफ वाइटल कैपेसिटी दैट कैन बी एक्सपायर्ड इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ एक्सपिरेशन FeV1. ठीक है. सो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज में क्या होता है? FeV1 by FVC रेशियो नॉर्मल होता है या इंक्रीज होता है? समझ में आया? क्यों? क्योंकि FeV1 by FVC रेशियो अभी वाइटल कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज में कम होगा. एग्जाम्पल उसका लास्ट जो दिया है मैं वो बता रही हूँ, पल्मोनरी फाइब्रोसिस. ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज पल्मोनरी फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस यानी इलास्टिक फाइबर रिप्लेस बाय फाइब्रस टिश्यू. तो फाइब्रस टिश्यू अगर लंग में बढ़ जाएंगे तो एक्सपांशन होगा? नहीं, एक्सपांशन नहीं होगा. राइट, कम होगा. एक्सपांशन कम होगा तो वाइटल कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? डिक्रीज होगी. ठीक है, एंड वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो FeV1 by FVC रेशियो क्या होगा? FeV1 by FVC रेशियो क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी इफ इट इज लेस तो रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा. समझ में आ गया? ठीक है. दैट इज व्हाई इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज FeV1 by FVC रेशियो आइदर नॉर्मल होता है या इंक्रीज होता है. क्लियर? एंड टोटल लंग कैपेसिटी, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन है तो टोटल लंग कैपेसिटी कम होगी, रेसिडुअल वॉल्यूम भी कम होगा. तो बाकी के पॉइंट्स पढ़ लेना. वैसे ही तुम्हारा जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है is a typical of airway obstruction with its increased resistance to expiratory airflow. तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है, उसमें एक्सपेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लंग एक्सपांड फुल्ली हो रहा है बिकॉज देयर इज नो इश्यू इन एक्सपांशन. लेकिन जब एयर बाहर जा रही है तो एयरवे जो तुम्हारी ब्रोंकियल ट्री है उसमें कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है यानी फोर्स वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल है, एक्सपेंशन में कोई इश्यू नहीं है, तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी कम है, लेकिन एक्सपिरेशन के टाइम पर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन. तो FeV1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसमें FeV1 की वैल्यू क्या होगी? FeV1 क्या होगा? फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड डिक्रीज होगा. एंड इफ इट डिक्रीजेस FeV1 by FVC रेशियो क्या होगा? डिक्रीज होगा. This is FeV1 by FVC ratio decreases. Clear? ठीक है. So this is a difference between, and so this is the FeV1 by FVC ratio is very important. ठीक है. So FeV1 decreases. So यहाँ पर देखो normally FeV1 by FVC देखो इसका ग्राफ. ऑब्स्ट्रक्टिव में देखो FeV1 कम हो रहा है, FVC क्यों कम हो रहा है? बिकॉज देयर इज नो इश्यू इन एक्सपांड. ये टोटल लंग कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, तो वो बढ़ गया है. ठीक है. सोचो ऑब्स्ट्रक्टिव, मैं बीच के ग्राफ की बात कर रही हूँ. ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज में क्या हो रहा है? देयर इज अ प्रॉब्लम इन एक्सपिरेशन. तो एक्सपिरेशन जब नहीं हो रहा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर तुम्हारे लंग में एल्वेलाई में रह जाएगी, और ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर रह जाएगी यानी रेसिडुअल वॉल्यूम तुम्हारा क्या होगा? ज्यादा होगा कंपेयर टू नॉर्मल. और रेसिडुअल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो तुम्हारी वाइटल कैपेसिटी कंपेयर टू नॉर्मल क्या हो जाएगी? कंप्लायंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा कंप्लायंस. समझ में आया? ठीक है. तो कंप्लायंस डिक्रीज होगा तो वाइटल कैपेसिटी कंपेयर टू नॉर्मल कम होगी. ठीक है. सो कंपेयर टू नॉर्मल कम होगी, और फिर वही एयर तुम जब बाहर निकालते हो तो ऑब्स्ट्रक्शन है तो FeV1 की वैल्यू और भी कम होगी. समझ में आया? सो इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज द FeV1 is decreases
compared to normal, FVC also decreases, right? So FEV1 by FVC रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टिव रहेगा, जितना एफवीसी है उसकी कंपैरिजन में FEV1 होगा, राइट? सो एफवीसी ही कम हो जाता है तो तुम्हारा FEV1 बाय FVC रेशियो नॉर्मल हो जाएगा. So in obstructive lung disease, FEV1 decreases. In restrictive type of diseases में FVC कम होता है. समझ में आया? So अभी फिर से डायनेमिक फ्लो वॉल्यूम लुक जो मैंने बताया वो हमारा है. जो ऊपर ऑरेंज वन है दैट इज अ नॉर्मल वन. अभी तुमको समझ में आएगा. रेसिडुअल वॉल्यूम यहाँ पर देखो, ठीक है, ऑन राइट. हाँ, एंड तुम्हारा 1 सेकेंड, उसके वहां पर एक पॉइंट दिया है 1 सेकेंड में, यानी फर्स्ट सेकेंड ऑफ एक्सलेशन में देखो टोटल लंग कैपेसिटी के बाद पीक एक्सपिरेटरी फ्लो आता है एंड 1 सेकेंड तक, यानी 80% ऑफ एयर तुम्हारी बाहर निकल जाती है नॉर्मली, राइट? वही चीज रिस्ट्रिक्टिव में देखो, पर्पल वन, रेसिडुअल वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ 1.2 था, यहाँ 0.6 हो गया. जितनी एयर अंदर आई है उस हिसाब से FEV1 तो सेम ही रहेगा, यानी फर्स्ट सेकेंड में तुम्हारा 80% ऑफ एयर ही बाहर निकलेगी, ठीक है? सो दैट इज रिस्ट्रिक्टिव में रेसिडुअल वॉल्यूम कम हो रहा है. ऑब्स्ट्रक्टिव में देखो रेसिडुअल वॉल्यूम 2.4 लीटर है. क्यों बढ़ गया? बिकॉज कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो नॉर्मल 1.2 है उसके साथ एज देयर इज अ डिफिकल्टी इन एक्सपिरेशन, बाहर नहीं जा पाएगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर बाहर नहीं जा पाएगी तो एयर एल्वेलाई के अंदर इकट्ठा होती जाएगी, तो तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ता जाएगा. समझ में आया? रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ गया, 2.4 हुआ, प्लस जो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड है वो भी कम हो गया, क्योंकि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन एक्सपिरेशन. तो फर्स्ट सेकेंड देखो कहां पर आ गया, फर्स्ट सेकेंड यानी पहली सेकेंड में इतनी ही एयर बाहर निकली. समझ में आ गया ये अभी फिगर? अभी समझ में आ गई? यस और नो? यस और नो? टाइम नहीं है. ओके, गुड. सो रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, यहाँ पर देखो कंप्लायंस कर्व जो दिया है, बीच वाला नॉर्मल है. इम्फाइसीमा, एजिंग, नॉर्मल सलाइन इन एल्वियोलाई में टोटल लंग कैपेसिटी, द कंप्लायंस कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्ट. एंड फाइब्रोसिस जो रिस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ लंग डिसीज है उसमें कंप्लायंस कम हो जाएगा, तो तुम्हारा जो ग्राफ है दैट इज शिफ्टेड टू right. Obstructive disease, blue one, the patient will have difficulty creating a positive alveolar pressure during expiration, and that caused by decreased elasticity in the lung and thus increase in a compliance, right? And restrictive में the patient will have difficulty in creating negative alveolar pressure during inspiration, that is caused by increased elasticity in the lung and thus decrease in a compliance. So as you see in a graph, the emphysema has higher total lung capacity because of increased compliance, and fibrosis में there is a decrease. और कोई क्लास है तुमको? Is there any class after this class? I have to take only 5 minutes. Okay. हाँ, चलो चलो. So I'll continue for 10 more minutes, 5 to 10 more minutes. ठीक है? Now it is complete, on the verge of completion. 3 to 4 slide only. But I have to complete it. So next time we'll start with pulmonary circulation. Okay. Now coming to pulmonary ventilation or a respiratory minute volume. So what is pulmonary ventilation? To out of the respiratory system per minute, right? 1 minute में how much amount of air we are inspiring and expiring out, that is the pulmonary ventilation. So normally how you calculate it? It is tidal volume into respiratory rate. Tidal volume, amount of air which you breathed in and out with each breath. और ऐसे ही 1 minute में हम कितनी breath लेते हैं? 12 to 16. ठीक है? बॉक्स में लिखा है which is respiratory rate. It is the number of breaths taken per minute. RR. ठीक है? It is approximately 12 to 18 per minute है. टाइडल वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू 500 ml है. रेस्पिरेटरी रेट अगर 12 लिया
तो 6000 ml per minute और 6 liter per minute is a pulmonary ventilation. ठीक है, अभी ये 1 मिनट में हम इतनी अमाउंट ऑफ एयर अंदर और बाहर लेते हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस 1 मिनट और ड्यूरिंग अ सिंगल ब्रीथ जो टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम है, उसमें से टाइडल वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ एयर विच इज ब्रीथेड इन और आउट ड्यूरिंग सिंगल ब्रेथ में भी amount of air in the respiratory passage which does not take part in the exchange of gases in a dead space. ठीक है, तो ये डेड स्पेस क्या है, जितना टाइडल वॉल्यूम है तुम्हारा, ठीक है, जितनी एयर तुम एक ब्रीथ में अंदर लेते हो, अमाउंट ऑफ एयर विच यू ब्रीथेड इन, ठीक है, ब्रीथेड इन, जस्ट सोचो कि क्वाइट ब्रीथ में तुम 500 ml ऑफ एयर तुम अंदर लेते हो, क्या पार्किंग एरिया में जाएगी? नो। कहाँ जाएगी? तो वो कौन से पार्ट में होगी? वो गैस एक्सचेंज एरिया में नहीं होगी, तो कौन से पार्ट में होगी बाकी की एयर? एल्वियोलाई तो गैस एक्सचेंज का पार्ट हुआ ना, एल्वियोलाई इज अ पार्ट ऑफ गैस एक्सचेंज, कंडक्टिंग पार्ट, वेरी गुड। अगर याद रहो तो फर्स्ट पार्ट में फंक्शनल एनाटॉमी बताई थी, उसमें कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन ऐसा बताया था, ठीक है। नोज से लेके एल्वियोलाई तक तुम्हारा जो भी है दैट इज अ कंडक्ट, दैट इज अ ट्रैक है पूरा तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। अभी मुझे बताओ, नोज वाला, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सारे पार्ट में जो भी एयर होती है वो क्या गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगी? नहीं करेगी, ठीक है। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियल तक का पार्ट क्या रेस्पिरेशन, क्या गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है? नहीं करता है। तो क्या वो खाली रहता है, उसमें एयर नहीं होती है? दैट एयर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन गैस एक्सचेंज। समझ में आया? वहां पर एयर होती है, लेकिन दैट एयर नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द एयर प्रेजेंट इन अ ट्रैक। तो वो जो एक्सचेंज किस पार्ट में होता है, गैस का एक्सचेंज कौन से पार्ट में होता है? रेस्पिरेटरी जोन वाला। और रेस्पिरेटरी जोन किससे बनता है? द एयर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। ये चार पार्ट में जो भी एयर है वो ही पार्टिसिपेट करती है इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द पल्मोनरी कैपिलरी एंड एयर इन द रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। सो again coming to definition of dead space, the amount of air in the respiratory passage which does not take part in the exchange of gas is dead space. it दो टाइप की होती है, anatomical dead space and physiological dead space, ठीक है। anatomical जो मैंने तुम नोज एंड माउथ अप टू टर्मिनल ब्रोंकियल दैट इज कंडक्टिंग एयरवेज, वो है एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है। और उसकी नॉर्मल वैल्यू 150 ml, नॉर्मल वैल्यू 150 ml का मतलब जितनी अमाउंट ऑफ एयर तुम एक ब्रीथ में लेते हो, ठीक है, उसमें से 150 ml इस पार्ट में होती है, कंडक्टिंग एयरवेज में होती है। तो नॉर्मली तुम कितनी अमाउंट ऑफ एयर एक ब्रीथ में लेते हो? कितने लेते हो? 500 ml। 500 ml में से 150 ml तुम्हारे कंडक्टिंग एयरवेज में होती है। समझ में आया? सो 500 माइनस 150 करो तो बचता है 350। 500 ml में से 150 को माइनस करो, 150 ml तो कंडक्टिंग एयरवेज में होती है, यानी वो 150 ml पार्टिसिपेट नहीं करती है गैस एक्सचेंज के लिए। तो सिर्फ जो बाकी की 350 रही, that 350 ml of air will participate in the exchange of gases. क्लियर? ठीक है। उसके सिवा even in a normal healthy individual there is a physiological dead space. तो physiological dead space क्या है? Anatomical in the alveoli which does not take part in the exchange of gases is known as physiological dead space.
सर्टन एल्वेलाई 300 मिलियन एल्वेलाई है, तो सभी इंडिविजुअल में 300 के 300 एल्वेलाई काम नहीं करते हैं। थोड़े एल्वेलाई ऐसे होते हैं कि जो काम एक्सचेंज वाला काम करता ही नहीं है। तुम प्राणायाम करो तो जाके वो एल्वेलाई खुल जाते हैं, इसलिए प्राणायाम का फायदा वो है। समझ में आया? तुम मैक्सिमम एल्वेलाई को यूटिलाइज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो तुम डेड स्पेस को कम कर रहे हो बाय डूइंग दैट. So anatomical plus the amount of air which is in the alveoli which does not take part in the exchange of gases, that is a physiological dead space. And dead space you can measure with direct Bohr's equation or indirect method, that is single breath nitrogen washout method. ये दोनों मेथड के डिटेल में हम नहीं जाते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा. Okay, so the dead space is the volume of air in the conducting passage which does not participating in gas exchange. एक है anatomical dead space, दूसरा है functional और physiological dead space. Anatomical 150 ml है, which is a 1/3 of a tidal volume. On expiration, this air is expired first before any of the air from the alveoli reaches to the atmosphere. तो जब तुम बाहर एक्सपिरेशन करते हो, ठीक है, तुमने इंस्पिरेशन किया, लेकिन इंस्पिरेशन के बाद जब तुम एक्सपायर करते हो तो कौन सी अमाउंट ऑफ एयर पहले बाहर निकलती है? तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस में जो एयर है वो पहले बाहर निकलती है. समझ में आया? ठीक है. फंक्शनल डेड स्पेस क्या है? इट इज नॉन फंक्शनिंग एल्वेओलाई, द एल्वेओलाई दैट ceases to act in gas exchange due to collapse or obstruction or because they are not perfused by capillary blood flow. So in a healthy physiological dead space, physiological is a summation of non-functioning alveoli and the anatomical dead space. ठीक है, तो यहाँ फिगर में अगर तुम ध्यान से देखो तो टाइडल वॉल्यूम ऊपर वाला ग्रीन वाला इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस एंड नीचे वाला 350 बाकी रह गया विच पार्टिसिपेट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. टोटल मिला के टाइडल वॉल्यूम होता है. ठीक है, अभी नीचे की फिगर एल्वेओलाई की देखो ऑन लेफ्ट हैंड साइड पर एंड एक्सपिरेटरी पोजीशन के टाइम पर एल्वेओलाई देखो एंड कंडक्टिंग एयरवेज में ऑरेंज कलर का एल्वेओलर एयर फ्रॉम द प्रीवियस ब्रेथ. व्हेन यू इंस्पायर, तुम जब इंस्पायर करते हो तो वो जो एयर है पहली ब्रीथ वाली वो पहले एल्वेओलाई के अंदर पार्टिसिपेट इन द गैस एक्सचेंज एंड फिर नई वाली एयर दैट इंस्पायर्ड एट दैट फिल्स द कंडक्टिंग एयरवे. समझ में आया? ठीक है. सो द एल्वेओलर वेंटिलेशन, लास्ट वन. व्हाट इज एल्वेओलर वेंटिलेशन? द अमाउंट ऑफ एयर वेंटिलेटिंग एल्वेओलाई पर मिनट. तो तुम पल्मोनरी वेंटिलेशन तो कितना भी 6000 ml हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट ऑफ एयर कौन सी यूजफुल है? तो द अमाउंट ऑफ एयर विच इज इनसाइड योर एल्वेओलाई, इनसाइड योर गैस एक्सचेंज एयरवे, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. So alveolar ventilation is tidal volume minus dead space into respiratory rate. अभी हमने देखा tidal volume 500 ml है minus 150 ml is anatomical dead space into 12, यानी 350 ml into 12 4200 ml और 4.2 लीटर पर मिनट. तो अगर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाए तो इंपॉर्टेंट कौन सा वेंटिलेशन है? पल्मोनरी वेंटिलेशन की एल्वेओलर वेंटिलेशन? Which ventilation is important? Functional point of view. Alveolar ventilation. अभी समझ में आ गया? ठीक है. It is for example. ठीक है, अभी एग्जाम्पल आ रहा है. सिग्निफिकेंस इसका क्या है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है एल्वेओलर वेंटिलेशन का? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बाय डिफ्यूजन बिटवीन द एल्वेओलाई एंड द पल्मोनरी ब्लड फ्लो थ्रू द एल्वेओलर वेंटिलेशन. So alveolar ventilation का importance, physiological significance क्या है? In rapid and shallow breathing, though the minute ventilation does not change much, ठीक है, alveolar ventilation is grossly impaired. Rapid and shallow breathing. Rapid means respiratory rate बढ़ गया, पर respiratory rate 20 हुआ. कैलकुलेट करो. हाँ, मैं एग्जाम्पल तुमको ये एल्वेओलर वेंटिलेशन कैलकुलेट करने के लिए बोल रही हूँ. तुम्हारा रैपिड है ब्रीदिंग, रैपिड यानी तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट 12 से बढ़ के 20 हो गया. एंड शैलो, शैलो यानी तुम टाइडल वॉल्यूम कम हो रहा है.
तुम जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एयर विच रीच इन अ वन ब्रीथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो टाइडल वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो 500 ml की जगह 300 ml हो गया, ठीक है। तो अभी मुझे पल्मोनरी वेंटिलेशन कितना होगा पहले ये बताओ, पल्मोनरी वेंटिलेशन 300 ml इज टाइडल वॉल्यूम, शैलो ब्रीदिंग है, एंड रैपिड ब्रीदिंग है यानी रेस्पिरेटरी रेट 20 है, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन कितना है, जल्दी फटाफट, इक्वेशन भूल गए, 6000 ml, वेरी गुड, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट, 6000 ml हो गया, ठीक है। अभी मुझे एल्वेलर वेंटिलेशन, सेम का एल्वेलर वेंटिलेशन कैलकुलेट करके बताओ, एल्वेलर वेंटिलेशन, यस वेरी गुड, 3000, क्लियर। और नॉर्मल एल्वेलर वेंटिलेशन कितना होता है, 4200 ml, यानी यानी अभी फिर से मैं पढ़ रही हूँ, इन रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग दो द मिनट वेंटिलेशन डज नॉट चेंज, मिनट वेंटिलेशन यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन चेंज नहीं हो रहा है, वो तो नॉर्मल ही है 6000 ml, लेकिन एल्वेलर वेंटिलेशन ग्रॉसली इंपेयर्ड होता है, 4200 ml था उसकी जगह 3000 हो गया, तो इंपॉर्टेंट वन तो एल्वेलर वेंटिलेशन है ना, पल्मोनरी वेंटिलेशन से हमको क्या लेना देना, समझ में आया। सो द पेशेंट विद दिस टाइप ऑफ ब्रीदिंग डेवलप हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया, and in deep and slow breathing, deep and slow, deep यानी टाइडल वॉल्यूम, तुम बहुत धीरे धीरे अंदर ले रहे हो, ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टाइडल वॉल्यूम यहाँ पर तुम्हारा है 600 ml, एंड स्लो ब्रीदिंग, स्लो यानी तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 12 से 10 हो गया, ठीक है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन तो सेम ही रहा, 6000 इंटू 10, 600 सॉरी इंटू 10 यानी 6000 आएगा, एल्वेलर वेंटिलेशन इज ग्रेटर देन द नॉर्मल, 600 तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम है माइनस 150 करो तो 450 आएगा, ठीक है, 450 इंटू 10 यानी 4500 ml तुम्हारा एल्वेलर वेंटिलेशन हुआ, यानी नॉर्मल की कंपैरिजन में एल्वेलर वेंटिलेशन बढ़ा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एल्वेलर वेंटिलेशन, क्यों, क्योंकि हमको तो जो एयर चाहिए वो कितना गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है, वो रेस्पिरेशन का मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी चाहिए बिटवीन एल्वेलाई एंड द पल्मोनरी ब्लड, अगर एल्वेलर वेंटिलेशन कम होगा तो पेशेंट को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो पेशेंट विल सफर फ्रॉम हाइपोक्सिया, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर रिमूव नहीं होगा तो हाइपरकैप्निया हो जाएगा, ठीक है। सो पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड एल्वेलर वेंटिलेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्या है, एल्वेलर वेंटिलेशन, एंड प्राणायाम इंक्रीजेस एल्वेलर वेंटिलेशन, ठीक है। सो एल्वेलर वेंटिलेशन, हाउ यू मेजर, दिस इज द इक्वेशन, VA is equal to VeCO2 divided by FaCO2. VeCO2 is a volume of carbon dioxide expired per minute, and FaCO2 is a fractional concentration of carbon dioxide in the alveolar gas, because of the expired carbon dioxide originated from the alveoli. So inverse relationship exists between the alveolar ventilation, VA का मतलब है alveolar ventilation, and partial PaCO2 is a partial pressure of carbon dioxide in arterial blood. कैपिटल A का मतलब है alveoli एंड स्मॉल a का मतलब होता है arterial, समझ में आया। An increase in a arterial PCO2 reflects hypoventilation and decrease in a PaCO2 reflects hyperventilation. Clear? So here I'll end the class. Any question, any doubt? So we completed pulmonary ventilation. I hope you understood whole the pulmonary ventilation. Clear? So next we will learn about the perfusion of the alveoli, that is pulmonary circulation.
Is it clear to all? Okay. हाँ, mostly planning है.